So, good morning, friends. Welcome to Equity Education, Price Action Trading. This is the students' price action webinar. This is the last Sunday of the month as part of the routine tradition of my training. Again, we are meeting. Again, this is 11 a.m. in the morning, and it's only patient working. Huh? When हम संडे को सुबह 11 बजे मिलते हैं, it's all about passion कि हमको क्या सीखना है और कैसे आगे बढ़ना है. तो लर्न लाइव, दिस इज माय ग्रुप इक्विटी इक्वेशन लाइव. मैं पूरे दिन सर लाइव रहता हूँ, यू ऑल नो मी, तो इसलिए इस ग्रुप का नाम भी मैंने लाइव दिया है. सो लेट्स मूव अहेड. टुडेस एजेंडा, टुडेस टॉपिक इज निफ्टी नॉट आउट, वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट आई हैव एवर टेकन. और ये सब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए, बट बहुत टाइम बाद आया. निफ्टी नॉट आउट. राइट सर, आई एम सुहास फुटवाला एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेशन विल बी 1 आवर. ऑलमोस्ट मेरा रहेगा 1 आवर का सेशन. देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड डोंट वरी, जस्ट आस्क वन बाय वन. देयर इज नो हरी, नो वरी सर. मैं आपके सामने ही बैठा हूँ जब तक आपका सवाल खत्म ना हो. एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ, योर सराउंडिंग इज बिजी. Otherwise, I will remove you without any notice. So, in spite of warning, still you are not muting. Okay. So let me move ahead, sir. Nifty not out. As you know, I am Suhas Futwala in Equity Market 2005. I am NSM certified research analyst. I am MP certified mutual fund advisor, professional trader, long-term investor. My passion is mentoring the people for fundamental analysis as well as technical analysis, and intraday is my big passion in the market. Sub broker of Motilal Oswal. You can associate with me. Depend account opening. Most welcome to be associated for learn technical fundamental analysis. You are already my students. Demat account opening and of course portfolio management, as I am associated with Motilal Oswal for PMS also. So my mobile number is 9727783339. So thanks to all of you, I have built my mentoring career in last 3.5 years. Almost 175 plus students with me since 2016. 17 batch I have completed last week. This all thanks to you. You are part of it. 18 batch already running. Total 5 workshops I did in during lockdown only. More than 20 plus educational webinar I did with you. 8 educational webinar I did during webinar only, during lockdown only. Last Sunday, as usual, this today, and every month I used to conduct one educational webinar for newbies also. I developed whole magnet theory to deal with the market, which we are following like anything. Religiously we are following, and we are tasted very nice fruit in since last few days also. You can see market was completely muted. Zigzag hota raha, direction clear nahi hota tha. At that time our magnet theory will not give us a direction कि भाई सीधा बोला काम नहीं करना है, because market was zigzag. So no trading is also good trading. So moving ahead, current performance, we have already discussed all these things. I have recommended this stock idea. To last, my recommendation is the Infrastructure Corporation of India, IFCI, sorry, Industrial Finance Corporation of India, and all rewarded nicely. These all are the positional trades. Only one Abbott is in a -5%. Rest of all are excellent appreciation. And idea almost multifold. If ILCP almost multifold returns from 175 to 485. And there are so many others. But this I have already posted. मैंने social media के ऊपर officially post किया है. That's why I am going to highlight this only. Okay. So one question is, why Nifty remains not out for me? किसी के पास आंसर है? Nifty क्यों not out है सर? मेरे लिए हाँ. I don't know about others. Why Nifty is not out? किसी के पास आंसर है? हाँ? No answer. Because the movement of reflection the of market. Indian economy. हाँ. तो निफ्टी कभी जीरो नहीं होगा. It's a reflection of Indian economy. बहुत बढ़िया. और कुछ? ये फंडामेंटल हुआ एज ए इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट. What about the trader prospect? Sir, because Nifty
चलेगा ही चलेगा, ऊपर नीचे किधर भी चलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मिलेंगी। राइट सर, बहुत बढ़िया सर। तो देखो, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाई निफ्टी इज नॉट आउट। Know what you did to me, babe. Who is this dancer, sir? Michael Jackson. Michael Jackson. Jackson. See the his signature step, moonwalk ना, इसका signature step है। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन 1983। तब से इट्स अ बेंचमार्क फॉर डांसिंग इंडस्ट्री, डांसिंग आर्ट। अगर किसी भी डांसिंग एकेडमी में जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप इज अ मूनवॉक, राइट है ना सर? बेंचमार्क हो गया ना। लाइक निफ्टी, जैसे इंडियन इकोनॉमी का बेंचमार्क है निफ्टी, वैसे डांसिंग का बेंचमार्क है मूनवॉक बाय माइकल जैक्सन। और माइकल जैक्सन की लाइफ में बहुत अप डाउन आए सर। ड्रग एडिक्शन, सो मेनी सर्जरी, सो मेनी लाइफ फैमिली कॉम्प्लिकेशन, लाइफ कॉम्प्लिकेशन, स्टिल लाइक अ नंबर वन। अगर डांस में किसी भी का भी नाम दिया जाए, हु इज अ बेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड, तो एक ही नाम आता है सर, माइकल जैक्सन। दो ही इज नो मोर विथ अस नाउ, बट डांस मतलब माइकल जैक्सन। और वैसे ही सर इंडियन इकोनॉमी को एनालिसिस करना है तो निफ्टी मतलब इंडियन इकोनॉमी का बेंचमार्क हो। लेट्स मूव अहेड। ये इंडियन इकोनॉमी का डेटा है सर, दिस इज अ बेंचमार्क निफ्टी। निफ्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, राइट सर? और ये 2000 से डेटा है मेरे पास। और जब 96 में इंट्रोड्यूस हुआ था तब 1000 था निफ्टी, और फिर 2000 में 1 to 6 थी। बहुत सारे अप डाउन आए, इंक्लूडिंग 2008 बिग फॉल, राइट सर? इन स्पाइट ऑफ दिस सर, अभी निफ्टी 2019 में 12000 के आसपास था सर। तो यू कैन सी it's not performing like anything year after year, completely not out. up or down to लाइफ में आते रहते हैं सर। परफॉर्मेंस इज फॉर्म इज टेम्पररी सर, परफॉर्मेंस इज परमानेंट। सचिन तेंदुलकर सर 0 के ऊपर आउट होगा तो सचिन तेंदुलकर की रहेगा सर, राइट सर? तो निफ्टी नॉट आउट फॉर मी, बिकॉज अगर कोई बंदा रेगुलर इन्वेस्ट करता है विदाउट थिंकिंग टू मच अप एंड डाउन साइड, और उसको पता है व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द मार्केट, और हर बॉटम के ऊपर बाय करता है, देन ही वुड बी एप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग ईयर आफ्टर ईयर। और हमारे पास तो भी इंस्ट्रूमेंट भी बहुत है टू डील विद द निफ्टी। निफ्टी 20 में आप काम कर सकते हैं, आप उसमें बाय करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। एंड दोज आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, दे कैन फोकस ऑन अ निफ्टी future chart also by rolling over month after month. Please mute yourself, huh? Okay, तो ये रहा फंडामेंटल एस्पेक्ट। फंडामेंटल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ सर, व्हाई निफ्टी रिमेन्स नॉट आउट। फंडामेंटल रीजंस आर दैट इट्स हैविंग 50 टॉप कंपनी ऑफ द इंडिया, लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, टीसीएस। ये सब निफ्टी की टॉप कंपनियां है जो निफ्टी का पार्ट है। नॉन परफॉर्मिंग कंपनी रिप्लेस बाय द परफॉर्मिंग कंपनी मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। देखिए यस बैंक को निकाल के नेस्ले को ऐड किया गया, क्यों? नेस्ले वाज ट्रेंडिंग लाइक एनीथिंग, ही इज अ परफॉर्मर इन एफएमसीजी मार्केट। Only 13 stocks are still part of the Nifty from the inception. 13 स्टॉक ऐसे हैं जो इंसेप्शन से निफ्टी में है फ्रॉम 1996, जिनको अभी तक निकाला नहीं गया, तो दे आर द वैल्यू इन्वेस्टमेंट ऑन एनी डिप्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी, एलएनटी, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, टाटा स्टील, टाटा मोटर, ग्रासिम, हिंडाल्को, एचडीएफसी बैंक एंड हीरो मोटो, ये सिंस द इंसेप्शन निफ्टी के पार्ट है, निफ्टी 50 के पार्ट है, इनको कभी नहीं निकाला गया। तो दे आर अ ब्लू चिप स्टॉक। जब भी मैं बोलता हूँ ना सर कौन से ब्लू चिप स्टॉक है, तो दिस आर द ब्लू चिप स्टॉक। इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम। लेट्स मूव अहेड। व्हाई निफ्टी रिमेन्स नॉट आउट सर? और अभी आप लेटेस्ट डेटा दे दूं तो निफ्टी फ्रॉम द लो ऑफ 7511
ऑन 23 मार्च जब लोअर सर्किट लगाया था, एंड अभी तक 2700 पॉइंट ऊपर आ चुका है सर. इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग मूव आफ्टर लोअर सर्किट. And Reliance Industry alone had contributed more than 1500 points in a rally, जिसका कंट्रीब्यूशन रहता है 56.25%, और बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 49 स्टॉक से मिला है. तो रिलायंस इज अ ब्लू चिप स्टॉक. इट एप्रिशिएटेड ऑलमोस्ट सर 900 के नीचे चला गया था, और अभी 1700-1800 पे ऑलमोस्ट इट डबल इन स्पाइट ऑफ द कोरोना पेंडेमिक. This is what we are seeing. Nifty remains not out. This thanks to Reliance Industry in last 2 months. So Nifty remains not out, sir. Technical is the दिखाता हूँ just a chart from 1996 to current 10,383 was the previous closing of the Friday. अभी तक Nifty not out ही है sir. So if I am a good investor, I pick the stock at the bottom price. I would be rewarded like anything because long term में तो निफ्टी ऊपर ही जाने वाला है. इंडिया की इकोनॉमी जीरो नहीं होने वाली, और जितने भी नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक है सर उसको निकाल के परफॉर्मिंग स्टॉक को ऐड किया जाता है. So that Nifty can perform like anything, right? So these are major technical reasons of the market. So Nifty remains not out. In equity market sir, आंखों के सामने जो है वही सत्य है सर, बाकी सब नीतियां. हम पूरी रात देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी ने क्या किया. आई डोंट थिंक दिस आर यूजफुल. अगर मुझे एसजीएक्स निफ्टी देखना है, ग्लोबल मार्केट देखना है, तो मैं सुबह उठ के देख लूंगा. इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं पूरी नाइट उसके एनालिसिस के पीछे यूटिलाइज करूं. सो बेटर आई स्लीप होल नाइट और सुबह फ्रेश माइंड से मैं अच्छी ट्रेड लूं. और मुझे ग्लोबल मार्केट देखना है, ग्लोबल सेंटीमेंट देखना है, देन आई कैन कैच अर्ली इन द मॉर्निंग आल्सो. सुबह उठ के देख सकता हूँ. मैं पूरी रात ना ट्रेड ले सकता हूँ, पूरी रात ना मैं ट्रेड अपने चेंज कर सकता हूँ. देन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट लॉजिक टू स्टडी होल नाइट एज इट्स. तो आंखों के सामने जो है वही सत्य है. तो सुबह उठ के निफ्टी जो मुझे दिखाएगा ना लाइव, वही सत्य है मेरे लिए. इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल मार्केट डाउन हो, एसएक्स निफ्टी अप हो डाउन हो, आई डोंट माइंड. निफ्टी मुझे जो दिखाता है आंखों के सामने वही सत्य है, और मैं उसके ऊपर ही ट्रेडिंग करूंगा, उसके ऊपर ही मैं डिसीजन लूंगा इंस्टेड ऑफ सीइंग अदर थिंग्स. तो आंखों के सामने वही सत्य है, तो वो जानना है. तो उसके लिए मुझे अभी निफ्टी का चार्ट ओपन करना पड़ेगा. So let me open the chart of the Nifty. Nifty का chart is a Nifty, right sir? Okay, this is a live chart of Nifty. Daily time frame है. अभी हमने देखा कि 10,330 was the previous peak of the Nifty, जहां से वो ऊपर स्ट्रगल करके सस्टेन हुआ. But everyone says it's a completely overbought. वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा था without any good retracement, right sir? और उसके बाद ही फॉर्म उसने बनाया bearish engulfing, which is a bearish pattern sir. Bearish engulfing used to give a bearish move for a coming leg, but in spite of that, दूसरे दिन वो gap down open हुआ. Again he reached inside the bearish engulfing and close dot at the low of the bearish engulfing. Means उसने पूरे दिन सेल सिग्नल दिया ही नहीं, ओनली जिग-जैग मूव दिया. मीन्स मार्केट पूरा कंफ्यूजन में है, वो अपना डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहा है इन स्पाइट ऑफ द बेरिश एंगल्फिंग. और एक सवाल पूछता हूँ सर, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? कोई बताएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या है सर? What is technical analysis in layman terms? Reading price action. Reading price action. Anything else, sir? Probability of stock movement. Probability of stock movement. अगर मुझे पूछा जाए layman terms में, तो मेरे गुरुजी बार-बार कहते हैं कि history repeat itself. History repeat itself means past में जो हुआ उसका वापस पुनरावर्तन होगा. This is what technical analysis. तो अगर past में मैं जाता हूँ सर, तो जब भी निफ्टी ने टॉप के ऊपर बेरिश एंगल्फिंग बनाया ना, टॉप पर ऑन अ टॉप, इट्स अ 52 वीक हाई एंड देन डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड. आप देख सकते हो सर, अगेन ऑन अ टॉप बेरिश एंगल्फिंग, डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड.
और हम पीछे जाएंगे सर, अगेन बेरिश एंगल्फिंग डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड। मैं सालों पीछे जा रहा हूँ, अगेन बेरिश एंगल्फिंग डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड, अगेन ऑलमोस्ट बेरिश एंगल्फिंग, नॉट परफेक्ट बेरिश एंगल्फिंग, बट अगेन डाउनफॉल वाज देयर। मैं पुराने से पुराना डेटा लगाऊंगा ना, वहां बेरिश एंगल्फिंग इज एप्रिशिएट गिव अस अ depreciation to nifty like anything, again bearish engulfing almost, actually यहाँ green candle होने चाहिए, but still it is a bearish engulfing type pattern, again downfall starting, again bearish engulfing downfall starting, again bearish engulfing downfall started, again bearish engulfing downfall started, almost bearish engulfing downfall given। कभी देखा था सर ऐसा? हाँ, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द निफ्टी, कि निफ्टी ने जब भी टॉप के ऊपर बेरिश एंगल्फिंग टाइप ऑफ मूवमेंट बनाया है वो डाउन जाता है, ऑलमोस्ट बेरिश एंगल्फिंग डाउन। वी आर इन अ ईयर ऑफ 2011, हाँ नाउ 2011 में हम, अगेन ऑलमोस्ट बेरिश एंगल्फिंग टाइप, होल स्वेलोइंग कैंडल, अगेन डाउनफॉल। I am checking all the past data. History repeats itself. But in spite of all this data, sir, Nifty was not depreciated. Nifty नीचे नहीं गया after making current bearish candle. वो मिल गया ना सरप्राइज, मार्केट ने सरप्राइज दिया ना, because everybody is expecting कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, but it again bounced like anything. Do you know the major reason behind this up move? किसी ने एनालिसिस किया कि why this up move, why this bearish engulfing is failed? हाँ, it is failed or it's a fake? Can anyone say? हाँ, सर अभी आपके एनालिसिस से तो ये लग रहा है कि अभी 52 वीक हाइक पे नहीं था इसलिए नहीं फेल हुआ। हाँ सर, बेरिश एंगल्फिंग फेल हो गया। और अगर सच में सर बेरिश एंगल्फिंग इतना सक्सेसफुल रहता, हर चीज इतनी सक्सेसफुल रहती, तो मार्केट में 2% ही सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं होते ना, 30%, 40%, 50% होते ना। तो यही ये चीज है जो 2% ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग कर दी है। वो देखता है सर कि भाई बेरिश एंगल्फिंग बनाया, उसके नीचे जाएगा तो गिरेगा, बट वो गैप डाउन खुला एंड अगेन सस्टेन अबव द लो ऑफ द बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो उसका एंट्री पॉइंट था फॉर अ बेयर साइड। अभी भी सर उसके ऊपर है, और अभी तो निफ्टी ने प्रीवियस पिक जो था ना उसके ऊपर सस्टेन कर दिया, एंड इट इज फॉर्मिंग अ होली क्रॉस डोजी। अगेन इट शोज द मोल बुल्स इन द मार्केट। अभी भी सर इसमें बायर्स ज्यादा है ना कि सेलर्स। सेलर्स को हाँ बोलिए। और पास्ट में भी ऐसे एंगल्फिंग ने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया है ना, जो अपने भी पास्ट दिखा है। हाँ, मैं वही तो दिखा रहा हूँ ना, इट इज सरप्राइज मूव बाय निफ्टी। सरप्राइज मूव किया है इसने मतलब। और हम बोलेंगे सर इट्स अ फेक मूव, इट्स अ ट्रैप मूव। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में, मार्केट इज ऑलवेज राइट। जब आप बोलते हैं हम सब, जब हम बोलते हैं ना इट्स अ फेक मूव, इट्स अ ट्रैप मूव, मींस हमको समझ में नहीं आया मार्केट से। सच बोल रहा हूँ सर, एक्सेप्ट इट, कुछ चीजें हमारी समझ से परे है। और हमको सब चीज समझ में आती है ना, वी विल बी 100% सक्सेसफुल ट्रेडर, बट नहीं है, हमारे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो एक्सेप्ट इट कि मार्केट इज अ सुप्रीम, मार्केट इज neither fact neither trap, all moves are technical move. Sir, can we judge fake move, trap move well in advance? Can we judge हमारे पास कोई है टूल ऐसा जिससे फेक और ट्रैप को हम जज कर सके? नहीं। हाँ, हमारे पास कोई ऐसा एनालिस्ट है कि हम समझ कि ये मैनिपुलेशन है, कि ये ऑपरेटर मूव है, उसको जज कर सके? नहीं है सर। नो सर। तो व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन, उसके ऊपर हम फोकस क्यों करें? जस्ट कंसीडर ऑल मूव इज अ टेक्निकल मूव। जो भी मूव है इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केट। विदाउट थिंकिंग ऑल दिस, विदाउट ब्लेमिंग द मार्केट, जस्ट ट्रेड अनबायस्डली। मार्केट जो मूव देता है उसको एक्सेप्ट करो एंड जस्ट फाइंड आउट द राइट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। गॉट इट सर? अभी देखो निफ्टी कंफ्यूजन में है, वो कैसे पता चला? आखिरी की 2 कैंडल बताए, इट्स अ इनडिसिसिव कैंडल,
First one is spinning top, which is known for trend reversal, and second one is Holy Cross Doji, which is also indecisive candle, जो clear direction नहीं दे रही. हाँ, वो दिखा रही है कि बायर सम एक्सटेंट ज्यादा है, बिकॉज ऊपर की साइड झुकाव ज्यादा है, बट स्टिल इट्स अ इंडिसिसिव कैंडल. अभी मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम से इंटरडे टाइम फ्रेम 5 मिनट. So we'll come to know, in spite of indecisive move, Nifty follow Dow theory like anything, sir, in last 2 days. And I have posted live chart. मैंने live chart डाले हैं in all WhatsApp group and Telegram groups. कल की मूव देखिए तो completely sir double bottom बना है. And again completely double top बना है. अभी इससे अच्छा टेक्निकल हो I can't expect कि जब मार्केट म्यूटेड हो तब भी सर इतना अच्छा टेक्निकल मूव मार्केट दे रहा है. राइट है ना सर? कंप्लीटली सपोर्ट ऑफ द डाउ थियरी एंड कंप्लीटली रेजिस्टेंस ऑफ द डाउ थियरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलोइंग लाइक एनीथिंग. अगर मैं थर्सडे की मूव को फोकस करूं तो ऑलमोस्ट सेम मूव आई एम गेटिंग ऑन थर्सडे. डॉट फॉलो अप ऑफ अ डाउ थियरी. लाइन सही ड्रॉ कर रहा हूं ना सर मैं? हम इसी तरह लाइन ड्रॉ कर देना. डॉट बोथ मूव्स आर सिमिलर मूव और इंट्राडे. देख लीजिए सर, इधर भी कंप्लीट फॉलो अप ऑफ द डाउ थियरी. ऐसा कब होता है सर? मार्केट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल चैनल. लेट मी गो टू द व्हाइट बोर्ड. जब भी मार्केट सर बहुत सारा अच्छा अप मूव या डाउन मूव दिखा देता है सर, मार्केट में 4 तरह की मूव है जो मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया था. मार्केट राइज होगा, बेस बनाएगा और वापस राइज होगा. मार्केट राइज होगा, बेस बनाएगा और फॉल होगा. राइट सर? मार्केट फॉल होगा, बेस बनाएगा और वापस राइज होगा, या मार्केट फॉल होगा, बेस बनाएगा और वापस कंटिन्यू करेगा. ये 4 मूव ही मार्केट में पॉसिबल है. इसके अलावा एक मूव है, वो है कंप्लीटली साइडवे मूव, जहां मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में चला जाता है. इस 5 चीज के अलावा कोई और मूव पॉसिबल है मार्केट में सर? हाँ, नो ना सर. तो अभी वही चल रहा है. मार्केट आफ्टर गुड अप मूव ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, कंप्लीट गुड अप मूव, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फॉर्म में ये अभी अपना बेस बना रहा है टू क्लियर द नेक्स्ट डायरेक्शन. इट कैन बी अपसाइड आल्सो, इट कैन बी डाउनसाइड आल्सो. राइट? आई एम बायस्ड टुवर्ड्स मोर ओवर अपसाइड थैंक्स टू आवर मैग्नेट हियर. राइट? तो मैं बुल साइड के ऊपर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि इधर स्टॉक इज ऑलरेडी गुड, निफ्टी इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड, और अभी वो थोड़ा कंसोलिडेशन फॉर्म में है. वो अपना बेस बना रहा है टू क्लियर इट्स न्यू डायरेक्शन. और जब भी सर स्टॉक कंफ्यूजन में होता है, अपना बेस बनाता है, तब साइडवे मार्केट में चला जाता है, जो हमने देखा इंट्राडे चार्ट के ऊपर. तो इस तरह का मूव जनरली बनाता है, और जो उसने अभी बनाया, अभी निफ्टी है ना इस जगह है सर, अभी निफ्टी इस जगह है, रियली बेस बना रहा है, बेस बना रहा है. नेक्स्ट डायरेक्शन कैन बी डाउनवर्ड, नेक्स्ट डायरेक्शन कैन बी अपवर्ड. आई एम मोर लुकिंग फॉर दिस मूव in upcoming days, right? For a markup near about 10,500 plus or maybe 11,000 also, if you are not surprised. हाँ, okay. अभी जब भी सर मार्केट ऐसा कंसोलिडेशन में जाता है ना सर, तब साइडवे मूव मिलता है ड्यूरिंग इंट्राडे. दिस विल हेल्प यू फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स. और तब निफ्टी और मे बी इंडेक्स और एनी अदर इंडेक्स और एनी स्टॉक साइडवे में चले जाते हैं. और हमने देखा है इट मे फॉर्म द पैटर्न लाइक नॉर्मल चैनल, जो पिछले थर्सडे और फ्राइडे को फॉलो हुआ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल चैनल, जहां निफ्टी रेल की पटरियों के बीच में जिगजैग होता है. डाउन अप, डाउन अप, इसको नॉर्मल चैनल बोलते हैं. और जब डबल बॉटम बनता है ना सर, इट्स अ बुलिश पैटर्न. वी कैन बाय हियर फॉर टारगेट ऑफ दिस. Simultaneously, stop loss would be generation of the sell call below this line.
Similarly, after making double top, we can sell here simultaneously with a stop loss of making buy call above this line. यही मूव निफ्टी ने थर्सडे और फ्राइडे को दी है। इसको नॉर्मल चैनल बोलते हैं, जहां रेल की पटरियों के बीच में स्टॉक ऊपर नीचे होता है। एंड इट्स अ वेरी रिलायबल सेटअप टू ट्रेड इन द मार्केट व्हेन मार्केट इज साइडवेज, जहां मार्केट कंटिन्यू अप मूव या कंटिन्यू डाउन मूव क्लियर नहीं करता आफ्टर मेकिंग अ गुड वन साइड लेग। राइट सर, तो अभी हम देखो वापस चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इट फॉर्म दैट ओनली ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया। इट्स अ नॉर्मल चैनल, राइट सर, अप डाउन up and again down, right sir? This day is over. Now next day again it is in a consolidation form with the normal channel move. सर आप डाउ की मार्किंग कैसे करते हो? वंस इट मेक्स अ टॉप बाद में मार्किंग होता है डाउ थियरी? Yes sir, once it make a top going towards downside then market. अच्छा, देन मार्केट, ओके। Yes sir. ओके ओके। तो ये को again it's a one type of the complete support and resistance Dow theory follow up. इधर भी सर बीच में भी सर नॉर्मल चैनल का फॉलो हुआ है सर, you can see, right sir? It's a very narrow range Dow theory follow up with support and resistance. Any confusion sir? नो No sir. Clear sir? How the normal channel है? I already told you this is a revision. मैं सिर्फ रिवीजन ही करवा रहा हूँ कि कैसे इसमें काम कर। यू कैन एसोसिएटेड द थिंग विद द मैग्नेट थियरी आल्सो, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। यू कैन एसोसिएट मैग्नेट थियरी आल्सो। सो दिस अ वन टाइप ऑफ नॉर्मल चैनल जहाँ रेल की पटरी के बीच में स्टॉक घूमता रहता है। दिस आल्सो वन टाइप ऑफ नॉर्मल चैनल। एनी अदर क्वेश्चन ऑफ द डाउ थियरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अभी तक कोई सवाल सर? हाँ, हेलो? नो सर। Clear No, sir. sir. Clear. Clear, Yes, sir. sir. All clear ना? It's a basic है sir. You all know this thing very well. अभी मैं important part के ऊपर आता हूँ. Why in spite of bearish engulfing, Nifty is not falling? Analysis तो करना पड़ेगा ना सर कि bearish engulfing ने result क्यों नहीं दिया? In spite of gap down, उसने result क्यों नहीं दिया? तो can we check the constitution of the Nifty? कि निफ्टी सच में क्या करता है हमको पता है सर। अभी देखो निफ्टी का हाँ बोलिए सर। सर एक मिनट, उसमें ना आपने 2 दिन पहले बोला था वो देखने के लिए। हाँ वो बाद में करते हैं, डोंट वरी। ओके ओके सर। हाँ हाँ, अभी देखिए दिस लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द निफ्टी, जिसमें निफ्टी का वेटेज दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री वाज अ टॉप, एचडीएफसी सेकंड, हाउसिंग एचडीएफसी इज अ 7% और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबके पॉइंट्स। आपको अगर जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, हैव यू नोटिस समथिंग, सम चेंज हुआ है सर इसमें? पता है आप लोग इसमें कोई चेंज हुआ है? हाँ, रिलायंस 13% हो गया रिलायंस। हैव यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन टॉप एंड कंस्टिट्यूट्स बाय वेटेज? इसमें चेंज हुआ है सर, 2 चेंज हुए हैं सर इसमें। सर फार्मा ऐड किया है ना? नो सर, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक एज ऑफ नाउ। ओके का वेटेज बढ़ा है, किसका वेटेज? एचडीएफसी का वेटेज गिरा है। हाँ, वेटेज तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है सर। रिलायंस का बढ़ा है सर। इधर स्टॉक्स चेंज हुए हैं सर। भारतीय एयरटेल ऐड हुआ। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऐड हुआ सर टॉप 10 में। पहले कौन सा स्टॉक थे पता है? मारुति निकला। हाँ, और पहले मारुति था, एल&टी था, एक्सिस बैंक था। इन सबको रिप्लेस करके ये सब स्टॉक को पॉइंट दिए गए सर। गॉट द लॉजिक सर? टीसीएस भी था। टीसीएस भी था। ये आखिरी के 3 है ना, दे आर रिप्लेस बाय एक्सिस बैंक, मारुति एंड एल&टी। हेलो, तो अभी उन्होंने एफएमसीजी स्टॉक को ऐड किया, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल और कोटक। क्यों इनको ऐड किया गया सर? एनी रीजन? परफॉर्मर है। परफॉर्मर है। भारतीय एयरटेल इज स्टिल ट्रेंडिंग नियर 52 वीक हाई ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सर कोरोना पेंडेमिक में इतना नहीं गिरा सर। कैन वी शो द चार्ट?
देखो चार्ट, इट्स अ भारती एयरटेल, इट वाज अ परफॉर्मिंग लाइक एनीथिंग इन स्पाइट ऑफ पेंडेमिक सर। देखो खुद है परफॉर्म कर रहा है ना सर अभी ये। हाँ हेलो, दिस अ कोरोना पेंडेमिक और इट रिवाइव लाइक एनीथिंग और 52 हाई भी लगा लिया, completely outperformed the Nifty. Another reason is another addition is a Hindustan Unilever. Right sir, वो अभी ऊपर जा रहा है। I am looking for a bull trend in Hindustan Unilever है। Got it sir? Hello. Yes, sir. हाँ सर। Means सर ये Nifty remains not out sir with such a replacements. सर ये दरवाज बॉक्स ब्रेकआउट। This is a Darvas box breakout. That's why I am looking. It's a bull, right, sir? It's a Darvas box breakout. Okay. अभी आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। Another reason. यहाँ पे Darvas box. Another दरवास के ऊपर सपोर्ट भी लिया है रेड हैमर का। support भी लिया है। One more thing. ये देखिए सर, इधर सर बेरिश एंगल्फिंग बना था सर। हाँ नहीं सर। मीन्स जो भी मार्केट में उस दिन फॉल आया था, दिस ऑल थैंक्स टू अदर स्टॉक, नॉट फॉर रिलायंस। रिलायंस ने स्पिरिंग टॉप बनाया था सर उस दिन, अरे उस दिन राइट है ना सर? बराबर है। मीन्स रिलायंस स्ट्रॉन्ग था सर। रिलायंस गिरता तो मार्केट का बेरिश एंगल्फिंग सक्सेसफुल हो जाता, बट रिलायंस वाज स्टिल, एंड अगर 1750 के ऊपर सस्टेन हो गया ना सर 1750 के ऊपर, तो इट विल ब्लास्ट लाइक एनीथिंग अगेन। इट्स अ 52 वीक हाई स्टॉक जिसको हम इजीली सेल नहीं करते, हम उसको बुल साइड ही देखते हैं। आई एम लुकिंग अगेन अपवर्ड जर्नी इन रिलायंस अबव द लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी 1750। वो अभी किक भी दे रहा है, अभी भी किक भी दे रहा है। ओके सर, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस and the move of the 52 week high here. Clear sir? Any confusion? लेकिन सर 1750 क्यों एलओसी सर? वो हाई है सर अभी का लेटेस्ट। सर ये फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है। हाँ, इससे वन टाइप ऑफ फ्लैग और फ्लैग पैटर्न भी है सर। अभी देखो जनरली व्हाट इज पोलन फ्लैग सेज, मुझे स्ट्रॉन्ग 2-3 कैंडल चाहिए, इधर है बट इट्स अ गुड अप मूव ना। लॉजिकली इट्स अ वन टाइप ऑफ पोल एंड फ्लैग सर। और ये ऑलमोस्ट डबल टॉप है सर, डबल टॉप है ना सर? यस सर। तो उसके ऊपर सस्टेन होगा, देन इट विल रिवॉर्ड लाइक एनीथिंग सर अबव 1750। और स्टॉक 52 वीक हाई है, इट्स ऑलरेडी कैरिंग बुल मोमेंटम। क्लियर सर? समझो सर, यहाँ अगर बेरिश एंगल्फिंग होता ना, देन मार्केट विल रिवॉर्ड लाइक एनीथिंग डाउनसाइड, बट इट्स अ परफॉर्मर लाइक एनीथिंग माइकल जैक्सन सर रिलायंस, जो निफ्टी को बचा के रख रहा है सर। और निफ्टी का अभी जो मूव है, दिस ऑल 50% डेडिकेटेड टू द रिलायंस ओनली, जो अपने डेटा एनालिसिस किया। तो अबव 1750 अगेन आई एम लुकिंग फॉर गुड बुल राइड इन रिलायंस। क्लियर सर? यस सर। यस ओके, तो अभी Sir, but- आई एम, हाँ बोलिए सर। बट अभी जैसे आपने बोला कि एलएनटी और ये निकल गया, बट एलएनटी भी जैसे निकला उसके बाद उसने भी परफॉर्म किया। हाँ, एलएनटी परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ, बट और परफॉर्म किया, मतलब सर एक्चुअली वेटेज का जो जैसे फंड वालों को जैसे फॉर एग्जांपल 3% इसका वेटेज होता है, हाँ, तो उसके वो ये लोग परफॉर्मेंस के बेस पे जाते नहीं थे। अब तो इन्होंने 5-5, 6-6% कर दिया होगा सबने एलएनटी को, क्योंकि लॉन्ग रन में जाके फिर वो वापस निफ्टी में आ ही सकता है। हाँ, बट सर बिलीव मी, एलएनटी इज अ येट नॉन परफॉर्मर इन निफ्टी। हाँ सर, सॉरी सर, क्या कैन यू रिपीट? एलएनटी इज अ नॉन परफॉर्मर इन निफ्टी 50 स्टॉक। नो, इट वाज सर। हाँ, अभी भी नॉन परफॉर्मर है सर, उसने 52 वीक लो लगाया था, पता है? हाँ, यस, एग्री। इट्स वन ऑफ द वीकेस्ट साइन। और एक बात बोलूं सर, जब भी स्टॉक 52 वीक लो लगाता है ना, इट्स ऑलवेज वीक। और एलएनटी इज अ फंडामेंटल वेरी साउंड स्टॉक, उसने 52 वीक लो लगाया। और अभी तक सर निफ्टी 50 के 52 वीक लो स्टॉक है ना, उसमें से एक ही स्टॉक है
जो 52 वीक लो के नीचे सस्टेन नहीं हुआ और बाउंस लगाया. कैन यू नो दैट स्टॉक? सर क्या बोला आपने? 50 में एक ही ऐसा स्टॉक है जिसने 52 वीक लो लगाया और तुरंत बाउंस लगा लिया सर. रिलायंस. टाटा मोटर्स. नो रिलायंस. सर एसबीआई. जब पूरा मार्केट 52 वीक लो लगा रहा था ना सर, सभी स्टॉक, वो स्टॉक सिर्फ 2 मिनट 52 वीक लो रहा है, 2 मिनट ओनली. रिलायंस सर. नो ब्रिटानिया. इट्स भारती एयरटेल. नो ब्रिटानिया. एग्री. ब्रिटानिया ज्यादा रहा ही नहीं. दिस वाज अ 52 वीक लो सर. हियर यस. इधर रहा था, वापस बाउंस लगा दिया. अगेन यू कैन सी टिका ही नहीं सर 52 वीक लो के नजदीक. यस. नहीं टिका ना सर. और अभी कहाँ है सर? सो राइट डिसीजन बाय देम कि उन्होंने ब्रिटानिया को ऐड किया निफ्टी 50 में. बरोबर है. हाँ क्लियर है ना सर? अभी पता चला परफॉर्मर. यस सर. जो बंदा 52 वीक लो के नजदीक नहीं टिकता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा सर? और एलएनडी 52 वीक लो के आसपास ही था, इसलिए मैंने नाम बोला था कि अभी उसमें इन्वेस्ट मत करो. अभी भी देखो इसकी मूव देखो, इट्स अ परफॉर्मर. और एलएनडी देखो, ये देखो एलएनडी. बोलो सर, हु इज अ परफॉर्मर एंड हु इज अ नॉन परफॉर्मर? ब्रिटानिया इज अ परफॉर्मर ना. एग्री. हाँ. बट सर इंजीनियरिंग में आप वैसे देखोगे बाकी स्टॉक सब रिएक्ट, मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में बाकी अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो डजंट इट मेक सेंस कि अभी इसमें भी परफॉर्मेंस आ सकता है? सर मुझे एलएनडी का जो ईयर आफ्टर ईयर परफॉर्मेंस था ना, वो नहीं है सर इसमें. ये देखो दिख रहा है सर, बहुत झिकझक हो गया सर एलएनडी. क्लियर सर? गॉट इट. ये मूव, अभी इसका मूव दिख रहा है सर, क्लियर है? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट सर? अभी ब्रिटानिया दिखाता हूँ सर. बोलिए सर, हु इज अ परफॉर्मर, हु इज अ मल्टीप्लायर? ब्रिटानिया. HUL. हु इज अ परफॉर्मर सर? सर एचयूएल. अभी पता चला उसका वेटेज क्यों बढ़ाया गया सर HUL का. भारतीय एयरटेल देख लेते हैं सर. राइट सर, उसने जो पीक थी ना 2007-8 की, वो हासिल कर ली सर. मींस अबोव इट इट्स अ ब्रेकआउट. एक्चुअली भगवान ने भी साथ दे दिया. वो चार्ट नई टेरिटरी में घुस जाएगा सर, लाइफ टाइम हाई के पास. दिख रहा है यहाँ? लेट मी गो टू द वीकली चार्ट, वो ज्यादा क्लियर. तो सर ये जील को क्यों नहीं हटाते सर? इसको सर तो कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म रहता है. कौन सा सर? जील सर. जील टॉप 10 में नहीं है सर, वो हट जाएगा जल्दी, डोंट वरी. वो हटने वाला है जल्दी. अच्छा. अभी देखो ये मंथली है, ये ऑल टाइम हाई है, बराबर है सर. भारतीय एयरटेल इन 2007 सर आ गया वापिस. अभी इसके ऊपर टिक गया ना, तो आप लोग को पता है इट्स अ ब्रेकआउट, है ना सर? यस. एंड आफ्टर मल्टीपल बॉटम, दिस आल्सो वन टाइप ऑफ नॉर्मल चैनल ना सर. यस. जो निफ्टी में हमने 5 मिनट में देखा, वही फॉलो हो रहा है मंथली टाइम फ्रेम ऑन भारतीय एयरटेल. मींस सर अगर 592 के ऊपर सस्टेन हो गया, देन इट विल बूस्ट लाइक एनीथिंग एंड एंटर इन अ न्यू जोन जो उसने कभी लाइफ में नहीं देखा, अबव 600. क्लियर सर? थैंक्स टू कोविड. हाँ, तो भी हो जो भी हो सर, चार्ट सेज एवरीथिंग. चार्ट दिखा रहा है कि जितना भी 2008 में भारतीय एयरटेल लॉस किया, देन टेलीकॉम इंडस्ट्री वाज स्ट्रगलिंग विद दैट ट्राई एंड ऑल दिस थिंग. बराबर है सर? यस. 5 years. एंड ही इज अ भीष्म पितामह ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन इंडिया, भारतीय एयरटेल. अभी वो किसको फाइट कर रहा है सर? जियो से लड़ रहा है. जियो से लड़ना, बराबर है सर? पॉइंट नंबर 1. और 52 वीक हाई लगाना सर सेज एवरीथिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्टॉक एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक. राइट है ना सर? एग्री.
Can you believe, sir? I have shifted to Bharti Airtel from Idea last week. Yeah, I've seen your message. हाँ, तो हम खुद ही सर इसका फीडबैक देते हैं कि कैसा है. चार्ट भी वही बोल रहा है, यूजेज भी वही बोल रहा है. और अभी डेटा आया था ना कुछ भारतीय एयरटेल का, बराबर है. एवरेज यूजेज पर यूनिट करके ये प्रो आता है, वो हाईएस्ट था इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट. तो वो ही उसको नंबर 1 की ओर करेगा. हाँ, इट्स अ वेरी टफ. अभी रिलायंस जियो नंबर 1 है, बट इट मे गिव यू अ गुड फाइट इन टेलीकॉम इंडस्ट्री. दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ द निफ्टी टॉप 10 कंट्रीब्यूटर वेटेज वाइज. एंड देयर आर लिमिटेड कंपटीशन ना अभी कंपटीशन देखो. अभी आइडिया तो नॉन परफॉर्मर है. हाँ, जब तक वो अपनी भारतीय जियो ही बचा है. हाँ, अभी जो अपनी डेट क्लियर नहीं करेगा तब तक वो है. एंड मैंने जब भारतीय एयरटेल यूज करना शुरू किया इन लास्ट 5 or 7 days, then I have come to know why this stock is performing and giving good results. और दूसरा सर, एयरटेल है ना, तो वो अभी एक कैंपेन लेके खड़ा है कि 0 कंप्लेंट, मतलब जो भी कंप्लेंट है तो वो 0 कर देगा. हाँ, तो very good मतलब point. कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है उसका. बहुत ज्यादा है. This is the main point. of customer is going to satisfied like anything ना. Why should he change? Right ना? हाँ, सही है सर. Any other confusion till time, sir? जो मैंने अभी तक सिखाया regarding the normal channel, regarding the weightage of the Nifty 50 fundamental aspect, Nifty 50 technical aspect, anything if you want to ask. Clear? No Yes, questions? So thank you very much. अरे सुहास जी कहाँ जा रहे हो?